यही था यहाँ पे। द बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट everyone should be participant actively. बहुत only 34 students had joined that classroom. So हर एक ने क्लासरूम को ज्वाइन करना है और ये प्रोग्राम करेक्ट है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ओके, सो आप लोगों को लग रहा है कि मैडम ये कंडीशन जो भी है, पास इसको दो एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशन भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। जैसे एम्परसेंट किया मैंने, मतलब दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। लेट्स से पास है तो नंबर शुड बी व्हाट, पास होगा तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 40 होना चाहिए, ठीक है। सो एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करके हम लोग दो कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यही बताना था। हम लोग सेम कोड को डिफरेंट वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप एवरीवन एग्री विद दिस। ओके, fine. So this point I need to put it here. Okay, so my request is that everyone has to join the classroom and सब लोगों ने ये if loop के असाइनमेंट कंप्लीट करना है। इसके ऊपर हम लोग और असाइनमेंट देखेंगे। तो टुडे वी हैव टू फोकस ऑन फॉर लूप। ओके, सो अभी मैं फॉर लूप के बारे में आप लोगों को डिस्कस करने वाले हम लोग। ओके, सो बेसिकली हियर स्क्रीन इज विजिबल, yes or no dear student? Okay, No, let's ma'am. start. Okay, fine, I'm sharing that window. Okay, here everyone has to concentrate. Fine. Okay, so looping means what? What exactly looping? If loop में हम लोगों ने देखा कि if loop में हम एक condition डाल रहे हैं, उसका true false check कर रहे हैं. Okay, so looping means what is computer programming? Loop is sequence of instruction that is continually repeated until certain condition is reached. Dear student, मुझे एक चीज बार बार करनी है, repeatedly मुझे वही loop execute करना होगा. So I have to use for loop, while loop and do while loop. Okay. So उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये हम लोगों को आज देखना है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन पाथ। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली द लूप्स आर वी आर गोइंग टू सी। The next point will be loop control statement change execution from its normal sequence. When execution loses scope, all automatic objects that were created in the scope are destroyed. Okay, so we are not focusing on theoretical part. Just clear the concept is that जो लूप इज व्हाट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वही चीज मुझे बार बार करनी है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड नहीं होती। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग। सो लूप स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा पहला इफ लूप में कैसे होता था। देन देन वी नीड टू फोकस ऑन लूप स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड मल्टीपल टाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट इट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन दिया है, if it is true, again the condition will check. If it is false, it will go down. Okay, so what exactly it is, we'll see. So these are the looping types. Each statement is not a looping statement, dear student, because it is having two parts, if and else. Looping matlab I need to repeat a statement or group of statement I need to perform, then we have to use for loop actually. Okay, so today we need to focus on for loop. सो वी शुड नो while लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, डू while क्या है, नेस्टेड लूप क्या है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। सो टुडे वी नीड टू फोकस ऑन फॉर लूप। फॉर लूप मीन्स व्हाट, एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो मल्टीपल टाइम्स सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, so next point will be what syntax of for loop in C or C++. Dear student, don't focus on whether I am writing C or C++. Loop is same in C and C++, dear student. So the everyone has to focus on this slide is very important when you are talking about for loop. Okay, for loop का syntax क्या है? For keyword is important. Then initialization part is very important. Then semicolon, then condition, semicolon, and increment and decrement. Okay. So what exactly it is we are going to see using the program. उसके बाद आता है curly bracket start, statements, curly bracket ends. Okay, so here one important point is put it, that is everyone has to focus on that. Here is we can see the how for loop will be executed. Okay, using programming statement we are going to see. Okay, this is a flow chart of for loop. For loop का पहले syntax सब लोगों ने clear करना है. First of all, for keyword is important in rounded bracket. Initialization means we are going to initialize the variable, then semicolon, then condition, semicolon, then increment and decrement, then statement. Okay, we are going to say different variations of uh, for loop.
Just mute Sunil, Shalki and Shreyas from your side. Okay, just mute from your side, so echo will not generate it. Okay, so I hope everyone is agree on this. Okay, so this is the syntax of for loop. How it will be executed, we'll see one by one point, dear student. Okay, after that how for loop will execute. Initialization part जो है हम लोगों ने देखा, initialization means what? There is first we can initialize means we are giving or initializing some value to the variable. Then condition means decision box is required. Whether I is less than equal to 5, this is condition. If it is true, then your I get plus plus. If it is not, then end of the test or end of the execution. This is flow chart is very important as per for loop is concerned. So you should clear what exactly for loop is executed. Okay. So for that we are going to see live demo on GDB. Okay. So we need to focus on GDB editor. Okay. So I'm going to share that GDB. Okay. Fine everyone. So we have to focus on online GDB debugger. Okay. The theoretical part you should know how it will do. Everyone very well known about it. So now we need to focus on this point actually. Okay, fine. So we have to focus on this. I hope everyone visible it. It should be visible to everyone so that everyone should clear the concept. Okay. Yes. Visible है सब लोगों को. Hello. Give me the acknowledgement so that I hope yes in chat window you can also type there. Okay. So is it visible, dear student? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am, visible. Okay, okay, thank you so much. So we have to focus on these points now. Okay, fine. So here अभी हमें for loop use करना है basically मैंने अभी don't forget or concentrate on that language and all, we have to focus on our main task. Okay, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, we have started programming C++. These are the basic concepts. So I am declaring one integer variable. Okay, so integer variable I have declared, so I have to use for loop. Okay, so what is the syntax of for loop we have seen. Okay, what is the syntax of for loop, that is we want to see. Okay, the syntax of for loop is for keyword is very important. For loop, while loop, do while loop हम लोग क्यों use कर रहे हैं? Because we have to display same statement multiple times. वही चीज बार बार करनी होगी तो for loop में पहले part आता है that is for keyword, then initialization of variable. This is what initialization part. Okay, then next semicolon is very important. Semicolon का रोल for loop में बहुत ज्यादा होता है. So वो कैसे होता है, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर. उसके बाद semicolon के बाद आता है condition. Okay, so condition is very important. Then semicolon here is increment or decrement. तो आपका जो वेरिएबल है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप कर सकते हो. ओके, और उसके बाद आता है आपके फंक्शन, मतलब उसके करली ब्रैकेट्स में हम लोग उसकी बॉडी लिखते हैं और यहाँ पे लेट से मैंने कुछ लिखा सी आउट वट एवर. ओके, और प्रिंट एफ सी आउट में मैंने क्या किया, उसको डिस्प्ले किया. सपोज आई को मैंने प्रिंट किया लाइक वाइज वी कैन राइट द स्टेटमेंट. ओके, दिस इज व्हाट सिंटैक्स ऑफ व्हाट फॉर लूप. अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर कीवर्ड, initialization part, then condition, then increment or decrement, then curly bracket start, and in which we have to write or write any executable statement. Okay, so likewise first of all अभी ये सिंटैक्स सबको समझ में आ गया. अभी मैं एक सिंपल प्रोग्राम करने वाली हूँ. मुझे क्या करना है, ओके मैं अभी क्या करने वाली हूँ, प्रोग्राम लिखने वाली हूँ नीचे. अभी लेट से मैं इसको क्या करती हूँ, अभी फिलहाल हटा देती हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, so basically here, okay, I'm starting that I have to write the program. अभी मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, write the program to display 1 to 5 नंबर. ओके, मुझे क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम करना है कि मुझे 1 to 5 नंबर्स क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं. दिस इज माय प्रोग्राम. मतलब क्या, इफ लूप यूज करके तो नहीं चलेगा. इफ लूप में मैं क्या करूंगी, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, इफ लूप हमेशा एक बार ही एग्जीक्यूट होता है. इफ और एल्स एक आइदर ट्रू रहेगा आइदर फॉल्स रहेगा. बट व्हाइल लूप
जहाँ पे वही चीज 1 to 5 नंबर मुझे प्रिंट करने, मल्टीपल टाइम सेम कंसेप्ट मुझे रिपीट करना होगा, तो आई हैव टू यूज लूपिंग स्टेटमेंट। तो उसका पहला हम लोग देख रहे हैं फॉर लूप। ओके, तो अभी प्रोग्राम कैसे होगा? फॉर कीवर्ड इन राउंडेड ब्रैकेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 10 नंबर मुझे डिस्प्ले करने, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? आई हैव टू डिक्लेयर वन वेरिएबल हियर, लेट्स से इंटीजर आई। मैंने क्या डिक्लेयर किया? इंटीजर आई यहाँ पे डिक्लेयर किया। ओके, सो इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट? आई हैव टू गिव सम वैल्यू टू दैट आई। तो मुझे आई कहाँ से प्रिंट करना है? 1 से, क्योंकि मैंने डिस्प्ले का कोड क्या लिखा है? आई हैव टू डिस्प्ले 1 to 5 नंबर्स। ओके, सो आई इक्वल्स टू व्हाट? 1 सेमीकोलन, आई इज less than 5 semicolon, then I plus plus. Okay, okay, so what I'm writing here, first one is what? First part will be initialization, second part is condition, and third part is incrementation and decrementation, means I'm incrementing that variable. Remember that student, I'm just putting here, उसका one by one part हम लोग basically देखने वाले हैं। तो first सबको समझ में आ गया, पहले part initialization होना चाहिए, उसके बाद सेमीकोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंडीशन आएगा, कंडीशन के बाद अगेन सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई प्लस प्लस। तो ये जो आई प्लस प्लस है, इसके दो पार्ट है, इसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अभी आप बोलेंगे मैडम पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? और ऑलवेज रिमेंबर दैट ये इंक्रीमेंट हमेशा इंक्रीमेंट ओनली बाय वन वैल्यू, मतलब ये हमेशा एक से ही इंक्रीमेंट होता है व्हेन वी आर राइटिंग इन फॉर लूप आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई। यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया, मतलब इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोला जाता है। इफ आई एम परफॉर्मिंग प्लस प्लस आई हियर इंस्टेड ऑफ आई प्लस प्लस, इफ आई एम राइटिंग प्लस प्लस आई, इसको क्या बोला जाएगा? लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, प्लस प्लस आई। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज प्री इंक्रीमेंट, इसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट। बट ऑलवेज हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर लूप में? आई प्लस प्लस। तो डियर स्टूडेंट, इन फॉर लूप आप जो वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो, वो पहले करो इधर, बाद में इंक्रीमेंट करो, प्री करो इधर, पोस्ट करो, उसको उससे फॉर लूप को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कैसे नहीं पड़ता है वो हम लोग बाद में देखने वाले। पहले आप बेसिक सिंटैक्स क्लियर करो। ओके, तो अभी मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद मैंने राउंडेड ब्रैकेट दिया, और ओके कंप्लीट हुआ मेरा फॉर लूप। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मुझे एक ही स्टेटमेंट लिखना है फॉर लूप के अंदर, आई वांट टू राइट ओनली वन स्टेटमेंट इन फॉर लूप। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। जब मोर देन वन स्टेटमेंट में लिखती हूँ, मुझे लेट से क्या करना है? हियर आई वांट टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट। ओके, मुझे क्या लिखना है? मोर देन वन स्टेटमेंट इन लूप। तो मुझे करली ब्रैकेट्स, देन आई नीड these brackets. ओके, तो मुझे कौन से करली ब्रैकेट्स की जरूरत है? अदरवाइज नो नीड, सिंगल स्टेटमेंट लिखना होगा फॉर लूप के अंदर, तो भी आप लिख सकते हो। ओके, अभी हमें इसका क्या देखना है? एग्जीक्यूशन दिखना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मुझे क्या डिस्प्ले करना है? सी आउट आई। अभी हम लोगों को बहुत इसके ऊपर रिसर्च करना है कि वो एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी पहले हम लोग रन करके देखते हैं वेदर इट इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट, वी आर गोइंग टू सी। ओके, उसके बाद हम लोग प्री पोस्ट के ऊपर आने वाले हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फॉर लूप का क्या है? पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट होना चाहिए, देन कंडीशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर सेमीकोलन होना जरूरी है, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन होना जरूरी है। दिस इज द फॉर लूप सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट, फॉर लूप, डू वाइल लूप तीनों का काम सेम ही है, सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ओके, तो अभी मैं उसको रन कर रही हूँ, विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन। ओके फाइन, सो इट विल गिव द आउटपुट। लेट्स से मैं यहाँ मुझे क्या करना है? स्पेस देना है। सो मैं यहाँ पे देती हूँ, लेट्स से हमें क्या करना है? सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया। ओके फाइन, ओके, सो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? सब लोगों ने देखा, आउटपुट विल बी 10 1 2 3 4। सो हाउ इट विल एग्जीक्यूटेड, ये हम लोगों को देखना है। ओके, आउटपुट क्या आया मेरा? 1 2 3 एंड 4। हाउ? फॉर लूप में पहले हमने क्या किया? एक कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन, एवरीवन नोस। उसके बाद ये कमेंटेड स्टेटमेंट है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर। इट विल गोज टू फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज इंटीजर आई। मतलब वो मेमोरी में कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करेगा? इंटीजर टाइप का, उसके लिए 2 बाइट्स अलोकेट करेगा। उसके बाद फॉर लूप कीवर्ड स्टार्ट होगा,
Okay, then we have to start I equals to 1. Dear student, again we have to focus on debugging. Debugging means what? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सच में ये I में 1 वैल्यू जा रही है क्या? I में 2 वैल्यू जा रही है क्या? I में 3 वैल्यू जा रही है क्या? ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम लोग नेक्स्ट इसमें फोकस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली डिबगिंग कैसे होगा. डिबगिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन. आपको जब समझ में आएगा तो आप लोगों को लॉजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि सच में कुछ तो भी हो रहा है बैकएंड में. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाला है फॉर आई इक्वल्स टू 1. मतलब फर्स्ट इटरेशन किसके लिए चला, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज फर्स्ट इटरेशन. ओके, सो फर्स्ट इटरेशन मेरा क्या है? फर्स्ट इटरेशन विल बी व्हाट? आई इक्वल्स टू 1. एवरीवन एग्री विद दिस? ओके, आई 1 पे है. ओके, तो यहाँ पे पहले वो वैल्यू लेगा आई इक्वल्स टू 1. फाइन, आई इक्वल्स टू 1 है. यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5. यस, अंदर जाएगा, सी आउट आई, मतलब पहला वाला है उसने प्रिंट किया 1. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हम लोग फॉर लूप के बाहर नहीं आ सकते. एवरीवन हैज टू कंसंट्रेट ऑन दैट. जब तक फॉर लूप की कंडीशन, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक लूप के बाहर नहीं आएंगे. ओके, फर्स्ट इटरेशन में आई इक्वल्स टू 1, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा? आउटपुट विल बी, मैं लिखी हूँ यहाँ पे, आउटपुट इक्वल्स टू 1. ओके, सेकंड इटरेशन. ओके, पहला आउटपुट मेरा आ गया 1. एवरीवन एग्री? सेकंड इटरेशन क्या होगा? देखो, सेकंड इटरेशन व्हेन फर्स्ट पॉइंट आपने इनिशियलाइज किया, ओके, कंडीशन चेक की, थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई प्लस प्लस. Always remember that I plus plus means in C or C plus plus language, it will incremented by 1 only, or you can write here I equals to, ऐसे भी लिख सकते हो, I equal to I plus 1, one and the same thing. मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? एक से ही इंक्रीमेंट करेगा. हमेशा याद रखो. ओके, तो हम इतना डिफिकल्ट लिखने की आदत नहीं होती हमें, तो I equal to I plus 1 लिखो, either I plus plus 1 and the same thing in C plus plus language. ओके, सो आई की वैल्यू अभी क्या हो गई? अभी मुझे बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ? आई एक बार 1 डिस्प्ले हो गया, फिर कंडीशन चेक हो गई, 1 इज लेस देन 5. यस, अंदर जाएगा, ये डिस्प्ले करेगा, फिर से फॉर लूप ऊपर जाएगा. डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई की वैल्यू क्या हो गई अभी? आई प्लस प्लस करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई बिकम आई इक्वल टू आई प्लस 1. आई की वैल्यू 1 थी, अभी क्या हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? यस डियर स्टूडेंट, tell me the answer. What is the value of I now? That is, 2. yes, exactly. The value of I will be 2. Again, it will check the iteration. 2 is less than 5, मतलब second iteration में I की value क्या हो जाएगी? The second iteration, the I become what? I की value क्या होगी second iteration में? I equals to 3. 2. नहीं, first second iteration में I equals to what? 2 here. Okay? I की वैल्यू 2 हो गई. एवरीवन एग्री? अभी चेक करेगा, 2 कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इज लेस देन 5. यस, अंदर जाएगा, सी आउट 2, मतलब आई की वैल्यू क्या है? 2. तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा? आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 2. फाइन, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं. I2 हो गया, अगेन द कंडीशन इज नॉट फॉल्स, सो I2 डिस्प्ले होने के बाद इट इंक्रीमेंटेड. जब कंपाइलर की, ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन चेक करने के बाद वो वैल्यू प्रिंट करता है, जब वो एंड पे आता है फॉर लूप के, तुरंत आई को इंक्रीमेंट कर देता है. सो आई इक्वल टू आई प्लस 1, दैट इज आई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन थर्ड इटरेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 3. Yes, exactly. Value of I equal to what? That is 3 value. Okay. So again, it will check the value of I equal to 3. 3 is less than 5. Yes. The condition is very important here, student. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं आ सकते. The value of I equal to 3. So the 3 is less than 5. Yes. Again, it will display. So output will be, यहाँ पे मैं अभी ये जो कमेंट है वो निकाल देती हूँ, सो दैट इट शुड बी हाईलाइटेड. ओके, तो आपको लगेगा मैडम कमेंट कर रहे हैं. ओके, ऐसा नहीं होना, आपको समझ में आना चाहिए. तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट विल बी व्हाट? आवर नेक्स्ट आउटपुट क्या आया? 3. मतलब हम लोग थर्ड इटरेशन पे गए. देखो, थर्ड आउटपुट आ गया, फिर भी हमारा प्रोग्राम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ. ओके, एवरीवन इज एग्री विद दिस? फाइन, अभी देखो. हाँ, अभी आई की वैल्यू 3 थी. ओके, मतलब 3 इज लेस देन 5, अंदर गया. यस, कंडीशन ट्रू है तो ही हम लोग फॉर लूप के अंदर जा सकते हैं. सी आउट 3, यस, आउटपुट 3 विल बी देयर. अगेन
जब मैं कंपाइलर डिस्प्ले करने के बाद करली ब्रैकेट पे आएगा, फिर से वो ऑटोमेटिकली आई को एक से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आवर इंक्रीमेंटेशन पार्ट विल स्टार्ट. सो आई इक्वल टू आई प्लस 1 मींस आई विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 4. Exactly, the value of I will be what? 4. So 4 is less than 5. Everyone is agree with this? Yes, 4 is less than Yeah. 5. Yes, ma'am. Yes, तो fourth iteration में क्या जाएगा? fourth iteration में that is I equals to what? I की वैल्यू मेरी क्या है? 4 है. तो आउटपुट क्या है मेरा? 4. I hope everyone is agree with this. Output equal to 4. Okay, fine. अब तक हमारा सब प्रॉपर चल रहा था. Output equal to 4. Now when I have display means 4 is less than 5, everyone is agree. See out. I means आपका 4 डिस्प्ले हो गया, आप लोग बाहर आ गए. ओके, when you outside of that मतलब आप लोग फॉर लूप के उधर आ गए, फिर से I incremented by 1. What is the value of I now? What is the value of I? What is the value of I here? Yes, in fifth iteration the value 5. of, yes, in fifth iteration what is the value of I? That is 5th, isn't it? Everyone agree with this? The I equals to what? और 3 नहीं होगा ना मैडम? यस, हाँ वही बताना है, सबको बताना है. ओके, वही तो बताना है मुझे. I equals to 5 होगा. डियर स्टूडेंट, then concentrate here. Here 5 is less than 5. Is it true or false? Absolutely it is false. False. मतलब जब ये देखो ये false हो गया, मतलब कंडीशन false हो जाती तो हम लोग फॉर लूप में जा सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप लूप के बाहर आ जाओगे. यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को फॉर लूप का इटरेशन? बट ये स्टूडेंट, माय प्रोग्राम इज दैट राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 5 नंबर. ओके, मेरा प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 to 5 नंबर आई वांट टू डिस्प्ले. So tell me, dear student, is it a right condition to display 1 to 5 numbers? No, ma'am. Exactly. Thank you so No, much. ma'am. Okay. So that's why I have to write here what I less than or equal to. देखो student, ये equal to से कितना बड़ा effect हो रहा है. Everyone has to concentrate on that. Okay. So यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, सो ये कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है. देखो हम लोग कभी भूल जाते हैं इक्वल टू ऑपरेटर डालना. मतलब ये कंडीशन क्या लिखी थी मैंने? आई इज लेस देन 5, बट इट्स नॉट लाइक दैट. मुझे 5 तक डिस्प्ले करना है, दैट्स व्हाई आई नीड टू राइट इक्वल टू ऑपरेटर. इसीलिए मेरी कंडीशन क्या होगी? आई इज लेस देन और इक्वल टू 5. तो यहाँ पे 5 इज लेस देन 5 नहीं है, बट 5 इज इक्वल टू 5. यस, तो फिर से अंदर जाएगा और सी आउट 5 को डिस्प्ले करेगा और हमारे आउटपुट में क्या आएगा? अभी आएगा आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा? आउटपुट इक्वल टू व्हाट? 5. मतलब लाइकवाइज वी हैव डिस्प्लेड ऑल 5 नंबर. फिर से हम इसको क्या करेंगे? रन करेंगे, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों हाईलाइट किए हैं? बिकॉज इन फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, यू हैव टू क्लियर द इटरेशन. जब तक आपको इटरेशन समझ में नहीं आता है तब तक आपको फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. ये देखो डिस्प्ले क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5. पहले डिस्प्ले हो रहे थे 1 2 3 4, बिकॉज मेरी कंडीशन मैंने रॉन्ग लिखी थी, इसीलिए इक्वल टू ऑपरेटर वहां पे होना जरूरी है. ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. डियर स्टूडेंट, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट फॉर लूप. ये फॉर लूप बहुत सिंपल कंसेप्ट है. आपको लग रहा है मैडम ये लिखने के लिए डिफिकल्ट है? ऐसा कुछ नहीं. हम लोग फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फॉर लूप भी लिख सकते हैं. ओके, so before that I need to clear one point here, dear student. What exactly pre-increment and post-increment? This is the basic concepts of programming. So आपको समझ में आना चाहिए कब pre-increment होगा, कब post-increment होगा. ओके, तो ये मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये सेकंड वाला जो पार्ट है आई नीड टू शो हियर. ओके, सो व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट? इसको निकाल देती हूँ. प्री इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? Pre-increment means plus I before assigning the value to the variable. Yes, वेरिएबल असाइन करने के पहले ही मैंने क्या किया? प्लस प्लस ऑपरेटर किया. एंड पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट? आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल. मीन्स हाउ एग्जैक्टली इट इज, वो हम लोगों को रन करके देखना. ओके, तो अभी मैं फिलहाल ये सब इसको कमेंट कर देती हूँ डियर स्टूडेंट. यहाँ पे मैंने कमेंट किया सब इसको. अभी हम लोग परफॉर्म करने वाले प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, तो प्री इंक्रीमेंट क्या है एंड पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है? लेट्स से मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया. ओके, वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट हियर. ओके, सपोज आई हैव गिवन आई, लेट्स से हियर आई एम डिक्लेयरिंग इंटीजर i इक्वल्स टू 10. ओके, सेमीकोलन दिया. ओके, अभी मुझे डिस्प्ले करना है प्री इंक्रीमेंट.
सो आउटपुट में क्या आएगा वो हम लोग देखने वाले। ओके, तो अभी मैंने इसको कमेंट किया, इंटीजर ये मैं निकाल देती हूँ। ओके, अभी देखते हैं व्हेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम व्हाट विल हैपन इन दिस केस। Yes, just see the output carefully, dear student. I'm giving one integer variable that is int I equals to 10. Okay, so here मैंने क्या किया, सी आउट I और उसके बाद टैप करके I प्लस प्लस किया, वैल्यू क्या थी मेरी 10, बट उसने डिस्प्ले कैसे किया देखो। It will, dear student, always programming execution starts from left to right, but when we are performing pre-increment, post-increment, it executes from right to left. ये समझा के सब लोगों को, right to left जा रहा है मतलब हमारी डायरेक्शन इस वे से है। यहाँ पे what is the value of I? The value of I is 10. I am displaying here plus plus I means it takes first value then increment it. इसको डिस्प्ले किया उसने 11 और उसके बाद वो आउटपुट डिस्प्ले के लिए कहा गया, मीन्स इट डिस्प्लेइंग प्रोसेस कहाँ से हो रही, इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो फर्स्ट डिस्प्ले द 11 अगेन द वैल्यू ऑफ आई, नो डाउट जब आई प्लस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आई की, अगेन 11 ही होगी। एवरीवन इज एग्री विद दिस। सो नॉर्मली मैंने ऐसे किया, लेट्स से मैं ऐसे कर रही हूँ, इसको मैं नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन दे देती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे सी आउट किया। ओके, अभी मैं फिर से रन करती हूँ। आई होप एवरीवन क्लियर। जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो अभी क्या डिस्प्ले हुआ, देखो मैंने एक लाइन नीचे किया, पहले उसने आई डिस्प्ले किया, देन सी आउट प्लस प्लस आई, मतलब बाद में उसने इंक्रीमेंट किया। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे मैंने कैसे किया, अभी यहाँ पे प्लस प्लस निकाल दिया, बाद में प्लस प्लस डाल दिया, मतलब दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ठीक है, व्हेन आई एम रनिंग इट। हाँ, अभी देखो उसने आउटपुट में दिखाया क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट में जो आई की वैल्यू है वही रिप्रेजेंट की, मतलब ये क्यों हो रहा है ये दिखाने के, इसलिए मैंने इस वे से उसको दिखाया था, क्योंकि ये जो आउटपुट है वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है डियर स्टूडेंट, इट्स नॉट लेफ्ट टू राइट। ओके, तो फिर से इसको रन करती हूँ। एवरीवन हैज टू कंसंट्रेट। अभी मैंने रन किया, देखो अभी जब मैंने, पहले मैं फिर से बताती हूँ, ये आई प्लस प्लस है मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल देन वैल्यू इज इंक्रीमेंट, वैल्यू असाइन होने के बाद इंक्रीमेंटेशन होता है। एवरीवन इज एग्री। तो इनिशियली उसने क्या डिस्प्ले किया देखो, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू, वैल्यू असाइन करने के बाद उसने इंक्रीमेंट किया और उसका एग्जीक्यूशन वो कहाँ से हुआ, राइट टू लेफ्ट हुआ। इसलिए आई की वैल्यू 10 है, उसने डिस्प्ले क्या की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, पहले उसने वैल्यू क्या डिस्प्ले की 11, देन इट विल डिस्प्ले 10। सपोज आई एम परफॉर्मिंग प्री इंक्रीमेंट, सो व्हाट द चेंजेस विल बी देयर, इट सिंपली डिस्प्ले, जब मैं रन करूंगी इसको तो वो मुझे क्या आउटपुट दिखा रहा है, 11 11 मीन्स व्हाट, कि वो जो पहले प्री इंक्रीमेंट में वो क्या वैल्यू असाइन करने के पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है वही वैल्यू, क्योंकि पहले आई प्लस प्लस हुआ 11 वैल्यू थी, वही आगे जाके जो आई पहला फर्स्ट है उसकी भी वैल्यू उसने 11 कर दी। बट पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसे नहीं होता है, वो पहले वैल्यू लेता है फिर उसको इंक्रीमेंट करता है। आई होप एवरीवन एग्री विद दिस कंसेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप एवरीवन क्लियर प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो कब वो वैल्यू, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझना जरूरी है। प्री मतलब पहले क्या करेगा वो, बिफोर असाइनिंग द वैल्यू इट विल इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या कर रहा है, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू इट विल इंक्रीमेंट। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। तो आप लोग ये असाइनमेंट करके देख सकते हैं। ओके, सो आई होप एवरीवन इज एग्री। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हैं पर्सनली, नो प्रॉब्लम। ओके, ओनली 2 minutes in our hand, yes student. No doubt in next week we are arranging the extra session of our lecture as well as practical also, because it's two important concept and you have to clear each and every part. Okay, I hope everyone is clear this pre increment and post increment. So same, but बताने का रीजन ये है, फॉर लूप में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है whether you have performed pre-increment or post-increment, nothing happen in for loop. आप लोग I++ करो, either ++I करो, not more necessary. Okay,
तो आप लोग कैसे भी करो, बट ये फॉर्मूला जो फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मेरा सेकंड पार्ट है यहाँ पे। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने सपोज इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ से हटा दिया। ओके, आई एम रिमूविंग दैट इनिशियलाइजेशन पार्ट। सपोज मैंने इंटीजर आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या किया था 1। ओके, तो मैंने अभी क्या किया, ये हटा दिया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट। फिर भी वो वर्क कर रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। ओके, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट सो। ओके, अभी मैं रन कर रही हूँ प्रोग्राम को। yes. So what will happen in this case? मतलब फॉर लूप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? यस, स्टिल इट गिव्स द रिजल्ट। ये स्टूडेंट, दिस इज द मैजिक ऑफ फॉर लूप। I hope everyone clear. This is actually a magic. Means we are not initializing. ये सेकंड फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बोला है कि वी हैव टू डू द इनिशियलाइजेशन पार्ट, बट मैंने क्या किया, वो ब्लैंक रखा और ऊपर क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन पार्ट लिख दिया। जहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था वहां पे वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन दिया। स्टिल इट्स वर्क। मीन्स व्हाट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों ने फॉर लूप में ही इनिशियलाइजेशन करना चाहिए। आई होप एवरीवन इज एग्री। जो मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर लूप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेमीकोलन। तो ये पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। सपोज मैंने सेमीकोलन हटा दिया और रन किया, व्हाट विल हैपन इन दिस केस यू हैव टू शो। यस, इट गिव्स एन एरर। ऐसे अलाउड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर लूप का, दैट इज सेमीकोलन। ओके, सो सेमीकोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग फॉर लूप में से ये भी हटा दो, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट सेमीकोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेमीकोलन ही पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर टुडेज टास्क व्हाट एग्जैक्टली फॉर लूप वी आर गोइंग टू राइट, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट। और उसके मल्टीपल जो पैरामीटर्स है, जैसे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन नहीं डाला तो क्या होगा, कंडीशन नहीं डाला तो क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट नहीं डाला तो क्या होगा। We have to analyze whole for loop here. I hope everyone is agree with this. This is very important part.